A very good morning to all of you. Sir. So yesterday we had finished the first chapter of your this book, that is Politics in India since Independence. So today we are going to start the second chapter, and basically according to the new revised syllabus, this is lesson number 2. But according to your NCERT book, this is lesson number 3, and the name of the chapter is Politics of Planned Development. Second chapter, that is an era of one party dominance, in which we had to study regarding the second challenge of establishing democracy, as we had started in chapter 1. But that topic, this chapter has been deleted from your syllabus. Although some topics of lesson 2 has been added with lesson number 5. That we'll study in term 2 exam. So this is not of your use for the term 1. Priyanka, are you lost somewhere? Look into the book also. Okay. So after this we are having a third chapter, that is Politics of Planned Development, but its name has been revised as Planning and Development. So if you see in your syllabus, don't be confused, because the same name has been updated. This is your NCERT name and this is your current name chapter, that is Planning and Development. Almost the same thing, content is going to be the same, only they have changed the title, plus they have added 2 additional topics, that is Niti Aayog and they have NDC, National Development Council. So these topics we will taking at last. Once we finish the topic and the content of the chapter from the NCERT book, we will be taking in detail this, and this is going to be very important. They have added the topic, it means this is important also, and this is the most developed political phenomena we will see. चेंज जो है हमारा पॉलिटिक्स में, तो नीति आयोग एंड एनडीसी के बारे में स्टडी इन डिटेल. सो इन योर नोट्स व्हिच आई सेंट यू, नीति आयोग का दे हैव गिवन अ स्मॉल पैराग्राफ, but about NDC they have not given anything, so we'll have to study it our own. So before I will teach you this, I will send you the PDF. You will come with the written notes, because otherwise it will be difficult for you to understand. अगर आपके written notes होगा इन topics का, तो you will be able to understand while I will be explaining. Otherwise it is going to be a problem for me also कि I am continuously explaining and you do not have anything in front of you to understand. Okay, so this we will do a task. So today this thing, and last year this was the name. So I don't know why they are changing the name. Last session, your seniors 12, the updated name was Planned Development. For you, Planning Development. Before that, NCERT Politics of Planned Development. So now don't be confused. This is for you, Planning Development. So the very first topic which we need to understand regarding planning and development is political contestation. Contestation means debates and discussion relating to politics. Well, there is some issue which becomes a political issue. ठीक है, तो development will become a political issue and a matter of substance of discussion. तो इसके ऊपर debate और discussions होने लगेंगे, ठीक है? तो that will understand develop debate और discussions का matter क्यों बन रहा है. So once we attained independence, so people had lot of dreams, desires from the independent India, that we are going to have a democratic country, we will have the right to freedom, right to speech and expression, we will be able to right to vote, we will elect our own representative. It means we will follow a democratic form of structure or a government, which was lacking under which rule? British rule. So people were really excited and they had huge objectives and goals from an independent India. So the major challenges were nation building, उसे fulfill किया हमारी government ने. Second was establishing democracy, उसको हमने किया, हमने chapter नहीं पढ़ा but step by step, ठीक है. In the chapter era of one party dominance, in that हम किसके बारे में बात करेंगे? Establishing democracy. तो उस टाइम में क्या था? One political party was the most dominant party. कौन सी थी? Congress party. For continuously for 3 general elections around 15 years, which was a party in power? Congress party. So it was important that there should be a strong opposition also. That is why we are talking about establishing democracy, because the freedom fighters also were worried about कि अगर ऐसे एक पार्टी का डोमिनेंस चलता रहा तो हो सकता है हमारी कंट्री धीरे धीरे डिक्टेटर बन जाए, इनका डोमिनेंस हो जाए. सो इस टाइप की पॉलिसीज एंड प्लान्स वर पुट फॉरवर्ड, जिसकी वजह से हम क्या कह सके, हम डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं. पॉलिटिकल कंपटीशन होने लगा, अपोजिशन पार्टी आने लगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करने लगे. वो सब 11th में पढ़ा है. तो वो सब क्यों हो रहा था? ताकि वी वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, कि ऐसा ना हो जाए धीरे धीरे एक पार्टी इतनी डोमिनेंट हो जाए कि वो एक डिक्टेटर की तरह रिएक्ट करने लगे. सो दैट इज द मैटर वी हैड टू स्टडी इन सेकंड चैप्टर, बट वो हम बाद में पढ़ेंगे. नाउ कमिंग टू द थर्ड चैप्टर, दैट वाज रिलेटिंग टू अब डेवलपमेंट कैसे करें, बिकॉज
just after independence, the major challenge and the major focus of the government was to eradicate poverty. गरीबी बहुत थी. Many and the huge population was below the poverty line because all the resources were used and misused by the Britishers. So there was nothing left for the Indians. So we were living under the poverty line. So the important challenge was development. And when they thought of development, the first thing जो mind में आती थी, हम development की बात करते हैं, तो technological advancement की बात नहीं करेंगे हम बात नहीं करेंगे कि मिसाइल्स को हमें इन्वेंट करना है, हमें आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. We were thinking of the common people who was at the lower strata of the society, के जो सबसे नीचे थे, downtrodden जो society थी, backward classes जो थी, उनको कैसे हम अपग्रेड करें, उनको हम कैसे रिजर्वेशंस दें. सो द फर्स्ट एम वाज टू इरेडिकेट पॉवर्टी, क्योंकि पॉवर्टी को हटाएंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस ऑटोमेटिकली ओवरकम हो जाएंगे. समझ रहे हैं ना, क्योंकि पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. अनएजुकेटेड लोग थे, अनस्किल्ड लोग थे, अनएम्प्लॉयमेंट था. ठीक है, तो हमारी कंट्री की जीडीपी भी कम थी, ग्रोथ नहीं हो पा रहा था. तो जस्ट बिकॉज ऑफ जो नीचे के स्ट्राटा में जो हमारी पॉपुलेशन का नंबर था, और दैट वाज ह्यूज. सो एक चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट आ गया था, डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इरेडिकेटिंग पॉवर्टी. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि हमें प्लानिंग और डेवलपमेंट करना है पॉवर्टी को हटाने के लिए. बट दिस टर्म सुनने में ऐसा लग रहा है ना, जैसे डेवलपमेंट की बात होगी एवरीवन विल बी एक्साइटेड कि हाँ हमारी कंट्री में डेवलपमेंट होना चाहिए. हर कोई, डू यू थिंक एनीवन विल बी अपोज टू इट? आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई पार्टी अपोज करेगी, कोई कम्युनिटी अपोज करेगी अगेंस्ट डेवलपमेंट? डू यू थिंक डेवलपमेंट के अगेंस्ट कोई अपोज करेगा? बस यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है, तभी हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं. Development has different meaning for different society, different group, different people. ठीक है, different organization. इसका this is a term development. Maybe कोई हम प्रोसेस कर रहे हैं, that can be a development for some society. Maybe it can be a disadvantage activity for the other. उसको इतना बेनिफिट ना हो रहा हो, उसके लिए उससे नुकसान हो रहा हो. किसी के लिए बेनिफिट है, किसी के लिए नुकसान है. So यहाँ पर क्या बन गया, पॉलिटिकल इशू बन गया. एक के लिए करते थे तो दूसरा प्रोटेस्ट करता था, एक को फायदा हो रहा था, तीसरे को नुकसान हो रहा है. सो दिस डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिकेम अ इशू ऑफ पॉलिटिकल कंटेंसेशन. यहां मतलब डिबेट और डिस्कशन. ठीक है, तो इसी को हम समझने वाले हैं, डेवलपमेंट कैसे पॉलिटिकल कंटेंसेशन बना. फॉर स्टार्टिंग दैट दे हैव गिवन अ एग्जांपल. एक इंडिया का, ओडिशा का एक एग्जांपल दिया है. देयर हैव बीन सेम एग्जांपल्स अराउंड इंडिया इन ऑल द प्रोविंसेस एंड ऑल द स्टेट तो रीऑर्गेनाइज कर दिए थे हमने ऑलमोस्ट, या चल रहा था प्रोसेस during this time. So we'll talk about कि डेवलपमेंट तो करना था, उसकी वजह से why there were so much of conflicts and tensions between various sections of the society. So जब हम सोचते हैं कि we have to do development, it looks simple, but this task was not as simple as it looks like. Like I am teaching you, मैंने बोला third aim तो डेवलपमेंट था, we have to eradicate poverty. So everyone thinks कि गवर्नमेंट ने policies implement की and development स्टार्ट हो गया, but this was not so. So क्या प्रॉब्लम्स फेस की गवर्नमेंट ने व्हेन इट केम टू द थर्ड चैलेंज ऑफ आवर, क्या चैप्टर हमारा, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाले चैप्टर में. तो डेवलपमेंट से क्या प्रॉब्लम्स हुई, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो इज द बेसिक एसेंस ऑफ द चैप्टर क्लियर टू यू कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, और डेवलपमेंट इतना आसान वर्ड नहीं है जितना हम सोचते हैं. एंड आल्सो यू हैव आल्सो स्टडीड इन क्लास 11 द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था. दिस इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. दिस इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है हमारा, ग्रोथ. सो इसका भी एक डिफरेंस माइंड में रखना, कहीं ना कहीं दिस चैप्टर विल बी एबल, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट. ठीक है, बेसिकली द चैप्टर्स नेम इज फॉर यू इज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. As a global demand for steel increase, so directly they are starting with the example to make you understand. They are not explaining जो मैंने आपको किया वो बाद में आपको समझ आएगा, और मैंने पहले ही बता दिया what we are going to understand through this example. So in global demand all over the world there was a huge demand for steel. ठीक है, steel increase, and in India, Odisha, which has one of the largest reserves of untapped iron ore. Odisha is a place where they are having a natural resources of iron ore which has not been touched. Tapped means untouched, उसको अभी किसी ने माइन नहीं किया है. ठीक है, इन आवर कंट्री is being seen an important investment destination. तो इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दे सी दिस रीजन ओडिशा एज एन इंपॉर्टेंट प्लेस जहां से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स हमें इजीली अवेलेबल हो सकते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट होप्स टू कैश इन ऑन दिस unprecedented demand for iron ore and has signed memorandum of understanding. Memorandum of understanding क्या होता है? That is a written document. तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी उड़ीसा, उसने एक रिटन डॉक्यूमेंट साइन किया था
और कंट्रीज के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ, ठीक है, विद बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स। इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टील मेकर्स होते हैं, जो स्टील बनता है, स्टील किससे बनता है? आयरन से बनता है। आयरन ओर एक्सट्रैक्ट होता है, उसकी अलग फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में उसको रिफाइन किया जाता है, डिफरेंट प्रोसेसेस फॉलो होती हैं, स्टील कंस्ट्रक्ट होता है, स्टील बनता है। तो जितने भी स्टील मेकर्स है अराउंड द वर्ल्ड, इंटरनेशनल लेवल पे एंड इन विद इन इंडिया जो थे स्टील प्लांट्स जो थे, दे वर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन उड़ीसा। बस किसकी परमिशन चाहिए थी? गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी। तो उन्होंने क्या साइन कर लिया गवर्नमेंट के साथ? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमेशा अपना मेमोरेंडम का नाम मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन एग्रीमेंट, जिसपे साइन कर लेते हैं, सब कुछ रिटन होता है, जो उनके बीच में बॉन्डिंग हुई है, ठीक है, विद बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स। द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट दिस वुड ब्रिंग इन नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट थिंक्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट थिंक्स कि अगर ये मेमोरेंडम साइन होता है और यहाँ पर ये माइनिंग शुरू हो जाती है, दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ कैपिटल, इनकम, एम्प्लॉयमेंट in our country, which was required just after the independence. ठीक है, तो it means our government is looking forward towards development. So we will have to find some methods to eradicate poverty. उस रीजन में अगर माइनिंग होगी, स्टील प्लांट्स बनेंगे, इंडस्ट्रीज बनेगी, मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जब एक इंडस्ट्री शुरू होती है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी साइकिल होती है। अब आप इतने बड़े हो, आपको पता होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट की बात यहाँ पे ये हो रही है, ठीक है। The government believes that this would bring in necessary capital investment and provide a lot of employment opportunities. The iron ore resource lie in some of the most underdeveloped and predominantly tribal districts. अब अगर उड़ीसा की बात करें तो जो ये माइंस है जहाँ पे आयरन ओर मिल रहा है, अंडरग्राउंड होता है ना, उसे माइन करके निकालना पड़ता है, तो पता होता है, ठीक है, कहाँ पर है। बट तो ये जो रीजन है कहाँ पर है, देखिए, the iron ore resource lie in some of the most underdeveloped. Those are the regions of Odisha जो बहुत ज्यादा इंटीरियर है, बहुत बैकवर्ड रीजन्स है, और मोस्टली वो एरिया किससे डोमिनेट है? कौन से लोग डोमिनेंस में वहां पर? ट्राइबल्स कहाँ रहते हैं? मोस्टली बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज में रहते हैं, पिछड़े इलाकों में रहते हैं। दे डोंट वांट टू मर्ज विद द पीपल ऑफ द अदर सोसाइटी। उन्हें अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए दे ट्राई टू मेंटेन डिफरेंस फ्रॉम द सोसाइटी। उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज से भी मतलब नहीं होता है। दे आर हैप्पी विद देयर नेचर। वो अपना जो उनका नेचर है, जो फॉरेस्ट है, उसी को अपना लाइवलीहुड बना लेते हैं। होम भी वही है, फूड भी वही है, ठीक है। सो दे डोंट वांट इंटरफेरेंस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग टू देयर लाइवलीहुड। उसे वो अपना लाइवलीहुड मानते हैं, तभी दे हमने देखा पूजा करते हैं, वो पेड़ों की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं। तो ये उनका कल्चर है, क्योंकि उसको मानते हैं, उनका लाइवलीहुड वहीं से चलता आया है। एंड दे डू नॉट वांट कि उसमें कोई इंटरफेयर करे। बट वंस इट कम्स टू द डेवलपमेंट, डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ कटते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, रिवर वाटर का पॉल्यूशन होता है, जो केमिकल्स उसमें फ्लो करते हैं। तो अगर जब हम उनके एरियाज में इन्फ्रिंज करते हैं, मतलब घुसते हैं, तो उनके हम जो नेचर है, जो उनका एनवायरनमेंट था, उनका जो बायोस्फीयर था, हम उसको क्या करते हैं? बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू हर्ट अस आल्सो, पर सबसे ज्यादा दुख उनको होता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि हमें माइनिंग करनी है, गवर्नमेंट ने क्या मेमोरेंडम साइन कर लिया, रिटन डॉक्यूमेंट, वो किस एरिया में था? इन्हीं लोगों के एरिया में था, जो क्या थे? ट्राइबल्स थे, और बहुत रिमोट एरिया थे, जंगल में, काफी इंटीरियर में। आयुष्मान, कीप योर लेग दैट साइड, डोंट टच दैट, मेरा फोन टूट जाता, ठीक है। The iron ore resource lies in some of the most underdeveloped and predominantly tribal districts of the state. The tribal population fears. अब उनका डर क्या है? जो ट्राइबल लोग हैं, the tribal population fears that the setting up of industries would mean displacement from their home and livelihood. Is in one term you can understand why there is a different meaning of development for different sections of the society. For government it can be a matter of development. For some people it can be a matter of they will get employment. For some people, other countries जो बाहर से आ रही हैं, they will also gain profit जब वो investment करेंगे। जो हमारे domestic investors हैं, they will also be benefited by this. But when it comes to the local inhabitants, जिनके एरिया में वो जगह है, they fear, उनको डर है। उनको क्या डर है कि वो अपना livelihood जहाँ पे रह रहे थे, वो अपना जो nature था, environment था, उसको खो देंगे। And that is only the way उनकी life चलती है। They get food from there, they get shelter from there, and they are habitual to stay in that atmosphere. अगर वहाँ पे माइनिंग बनेगी तो सारे पेड़ कट जाएंगे, खोद देंगे, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बनेगी, बहुत बड़ा एरिया को खाली कराता है। ये नहीं कि छोटा सा प्लॉट लेकर के वहाँ पे माइनिंग हो रही है। लाइक यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ उत्तराखंड, सबसे जो क्लोजेस्ट है, टिहरी डैम, so many villages, इतने बड़ा पूरा पहाड़ का पहाड़ पानी के नीचे चले गया। So those people had to be displaced from them. और displaced क्या था? Government has given them the property, that's the other part of the story. But जो उनका natural habitat था, जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर उनके forefathers रहे हैं, वो लैंड तो पानी के नीचे चले गया।
चलो ये तो अभी मॉडर्न इंडिया की बात है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। उनको कुछ मिला पर ट्राइबल्स को कुछ नहीं मिलेगा, उनको बस डिस्प्लेस कर देंगे। मैक्सिमम क्या होगा, दे कैन वर्क एज अ वर्कर इन दैट इंडस्ट्री, but that was not their cup of tea, I would say. They do not like to do that work. They are more closely linked with the forest, hunting gathering इस टाइप का ही उनको पसंद था, ठीक है। अपना वो फार्मिंग कर सकते थे, अपना ही एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत, तो उनको उसके पास ही रहना पसंद है। तो here you can understand कि when it comes to planning and development, it is not so easy कि हम बोले कि अरे वाह गवर्नमेंट और डेवलपमेंट कर रही है। जैसे ही गवर्नमेंट एक स्टेप लेती है, क्यों, इंडिया इज अ स्टेट विच इज हैविंग सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, तो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता था हमें, किसकी वजह से, डाइवर्सिटी की वजह से। वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना फोर साइटेड था, जो हमारे फोर फादर्स थे उन्होंने इस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया था, ड्राफ्ट किया था कि स्टिल 70 इयर्स, मोर देन 70 इयर्स हो गए, बट वी आर पीसफुली लिविंग ऑल टुगेदर। तो डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है हमें, जब हमें कोई भी स्टेप लेना है। तो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस और डेवलपमेंट की बात आई तो भी इस टाइप के चैलेंजेस सामने आ रहे थे। जैसे इस एग्जांपल से समझ रहे आप, अगर आप एग्जांपल समझ जाएंगे तो चैप्टर में आपको थोड़ी डिफिकल्टी कम होगी, ठीक है। तो द ट्राइबल पॉपुलेशन feared that the setting up the industries would mean displacement from their homes and livelihood. livelihood का हिंदी में क्या होता है, जीविका, ठीक है, जीने का जो सहारा होता है उनका। The environmentalists fear that mining and industry would pollute the environment. एक और ग्रुप है which is not happy with this development. Environmentalists or the people who protect environment, who worry about the environment, who talk about the biosphere, who talk about the ecosystem, the balance in the ecosystem. उनको पता है कि इतने पेड़ कट गए तो कितना इम्बैलेंस होगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, they were also worried कि अगर इस जगह पे माइनिंग होगी तो that is going to be very harmful for the environment, for the biosphere. तो यहाँ पे एक और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आ गया, ट्राइबल तो थी दूसरी, बट एक और कौन सा आ गया, इन्वायरमेंटलिस्ट। Fear that mining and industry was pollute the environment. The central government feels that if the industry is not allowed, it would set a bad example. अब जो central government, state government है, now against the protest of the tribals and the environmentalists और जो भी section उससे खुश नहीं था, now central and state government सोचने लगी कि अगर हम इनकी बात मान लेते हैं and we do not do mining plant यहाँ पे हम establish नहीं करते हैं, जो memorandum sign किया है हमने written document उसको cancel कर देते हैं, it is going to set a bad example. इंडिया की बैड इमेज फॉरवर्ड कर देगा एट द ग्लोबल लेवल, इंटरनेशनली, कि इंडिया में तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं तो अच्छा नहीं है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। इस कंपनी ने इस कंट्री की इन्वेस्ट किया, जब वो रेडी थे तो वहां पे कंट्री में प्रोटेस्ट हो गया एंड दे उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया मेमोरेंडम को। तो दिस इज गोइंग टू प्रोजेक्ट अ बैड इमेज ऑफ इंडिया। ये किसके माइंड में चल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट के। एंड वी वर सेंट्रल गवर्नमेंट वाज ओनली वर्ड अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए दे रिक्वायर्ड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज, वहां के हमें प्लांट लगाए, ठीक है। तो इंडिया की एक बेकार इमेज आती तो डेवलपमेंट स्लो हो जाता हमारा। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स दैट इफ द इंडस्ट्री इज नॉट अलाउड इट वुड सेट अ बैड एग्जांपल एंड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री मींस कोई और फॉरेनर, कोई और कंट्री इन्वेस्टमेंट करने से 10 बार पहले सोचेगा कि यहाँ पे तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है इंडिया में, इस टाइप के इश्यूज आते रहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाज वरीड अबाउट दिस। सो रिलेटिंग टू दिस, येलो बॉक्स पढ़ लेते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ द प्रोटेस्ट व्हिच वाज पुट फॉरवर्ड बाय द पीपल ऑफ Odisha. The Odisha villagers protest against POSCO plant. POSCO plant is a steel plant of the Korean company. This is a Korean company. ये उनका steel plant है, which was situated in Odisha. And उन्होंने वहाँ पर क्या protest होता है? So भुवनेश्वर, क्या ये? भुवनेश्वर people facing, ये जगह का नाम है, the village. People displacement by the proposed POSCO India steel plant in Jagdishpur district stacked a domination outside the demonstration outside the Korean company office. So this was a Korean company office because this industry was of the Korean base. उन्होंने sign किया हुआ memorandum and they started the office and the industry. But there was a huge protest put forward by the people of this village. Particularly the names have been given here. But generally you need to understand the concept. So they were demanding. What was the demand of the people who were protesting and demonstrating outside the office of POSCO office, जो steel plant का office था? They were demanding cancellation of memorandum of understanding. They were saying cancel this agreement which you have signed with Indian Union or Indian government or state government of Odisha, signed between company and the Odisha government. Basically this was signed between the company and the Odisha government 1 year ago. So 1 year ago established काम होना वहाँ पर शुरू हो गया था। इस दिस पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ के लोगों ने, विलेज के लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया एंड व्हाट वाज देयर डिमांड कि इस मेमोरेंडम को क्या करो, आप लोग कैंसिल करो। कैंसिल क्यों करो, रीजंस हमने पढ़ लिया, उनकी लाइवलीहुड और वो रीजंस, ठीक है।
more than 100 men and women. So if we say how many demonstrations were there, कितने लोग थे? 100 men and women मिला करके थे from the ग्राम पंचायत of धिंकिया, दोगांव and Gadadunga tried to enter the office. These are the name of small villages nearby that area. एक ही village नहीं था, there were small villages. People from all those villages they gathered and they entered the office premises, by the police prevented them. जब वो जो ऑफिस था पोस्को का ऑफिस, उसके जब वो प्रीमाइसेस में घुसने लगे, जैसे हमारे स्कूल में प्रीमाइसेस है, तो उसमें उन्हें एंटर नहीं करने दिया. वहां पे कौन थी? ऑलरेडी पुलिस थी वहां पर उनको रोकने के लिए. ठीक है. रेजिंग स्लोगन्स. नाउ पीपल स्टार्टेड डेमोंस्ट्रेटिंग, रेजिंग, शाउटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द कंपनी and against the state government. The protesters said company should not be allowed to set up its plant. This company should not. वहाँ पे कंपनी बन गई थी पर अभी प्लांट बनना बाकी था. पहले होता है ना कहीं पे कुछ काम करना तो पहले एक ऑफिस बनता है, ऑफिस के वो देखते हैं वहाँ पे कैसे काम कर रहा है, तो स्लोली वहाँ पे इंडस्ट्री बननी थी. बट दिस पीपल स्टार्टेड डेमोंस्ट्रेटिंग एंड दे वर सेइंग दैट दिस कंपनी शुड नॉट अलाउड टू सेट अप इट्स प्लांट इन द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स एंड लाइवलीहुड. एक कंपनी बन रही है किसके बेस पे? बहुत सारे लोगों की लाइफ एंड लाइवलीहुड क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है अगर यहाँ पे इंडस्ट्री बनती है. The demonstration was organized by the, अब जो ये डेमोंस्ट्रेशन को फास्ट फॉरवर्ड लेकर के आ रहे थे, जो फोर फ्रंट में थे सबसे ज्यादा लोग, so they were from organization का नाम क्या था? राष्ट्रीय युवा संघ. So this there can be a question when there was a protest put forward by the people or the villagers of Odisha, which were the two organizations which were leading the protest against the POSCO company जो भी ऑफिस. तो राष्ट्रीय युवा संगठन and the निर्माण समिति. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट इट. अब पहला वाला पैराग्राफ एंड दिस को आप लोग लिंक कर पा रहे होंगे दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी. सेकंड पैराग्राफ सेज दैट कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दे आर सेइंग कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्वड इन दिस केस. सो वी आर वेरियस इंटरेस्ट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हैविंग डिफरेंट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. सो इस स्टेज को पढ़ के, स्टोरी को पढ़ के हमें ये समझ आ गया डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक जैसा हो. डेवलपमेंट हम अब कोई भी एक्टिविटी आगे लेकर के जा रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग इंपैक्ट पड़ेगा ऑन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. सो कैन यू आइडेंटिफाई वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्वड इन द केस एंड यू कैन. व्हाट आर देयर की पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. ये भी पता चल गया क्यों उन्हें प्रॉब्लम है इस टाइप के डेवलपमेंट से, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स के पॉइंट्स हैं. डू यू थिंक देयर आर एनी कॉमन पॉइंट्स ऑन व्हिच everyone can agree? कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकल सकता है that tribal people are also happy, environmentalists are also happy, POSCO company coming from Korea they are also happy, state government is also happy, central government is also happy. So many people are linked just for one project. It means they are having different meaning of development here. तो ऐसा कोई कॉमन आ सकता है. तो अभी क्वेश्चन है, अभी हम आगे समझेंगे उसे. Can this issue be resolved in a way which satisfied all various interests? जो मैंने बोला कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल सकता है कि ये सारे लोग सेटिस्फाइड हो जाएं, ठीक है, और काम भी हो जाए. As you ask these questions, you would find yourself facing yet bigger questions. हम ये क्वेश्चन सोच रहे हैं तो और सारे क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं, कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है. अगर एनवायरमेंटलिस्ट मान जाते हैं तो जो ट्राइबल्स हैं उनकी जो लाइवलीहुड है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वो कैसे खुश होंगे. फिर जो कंपनी का क्या होगा, गवर्नमेंट कैसे मानेगी. सो देयर आर सो मेनी अदर क्वेश्चंस व्हेन वी थिंक ऑफ these questions. All you ask this question, you would find yourself facing yet bigger questions. What kind of development does Odisha need? So they are asking you a question. अगर डेवलपमेंट से इतनी प्रॉब्लम आ रही है, so ऐसा क्या डेवलप होना चाहिए किसके अंदर, उड़ीसा के अंदर, so that all the peoples are satisfied और सब उसको मान ले. Indeed, whose need can be called Odisha's need? In fact, if you are talking about development, तो कितना अच्छा टर्म है देखो. Whose need can be called Odisha's need? मतलब अगर हमें उड़ीसा में डेवलपमेंट करना है तो किसका करना है, हम किसके लिए वर्क करें कि ऐसा लगेगा कि उड़ीसा का डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं. क्योंकि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लाए हम फॉर द एम्प्लॉयमेंट, फॉर जनरेटिंग द इनकम और रेजिंग द जीडीपी, उसके ऐसे इश्यूज खड़े हो गए. तो ऐसा हम किसकी नीड पूरी करें, ठीक है. सो ऑल दिस वाज रिलेटिंग टू द मीनिंग. बेसिकली वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट सेम फॉर ईच एंड एवरीवन. थ्रू दिस एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड दैट. सो चलो ये सही हुआ, यहाँ तक कंप्लीट हो गया. अब हम मेन टॉपिक पर आएंगे, बाद है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन. बेसिकली कि ये डेवलपमेंट के ऊपर क्या है, यहाँ पे पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है. किससे रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है. और कंटेस्टेशन का मीनिंग होता है एक्शन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूटिंग एंड आर्ग्यूइंग. जब हम डिस्प्यूट करते हैं किसी चीज में, डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, हम आर्ग्यू कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेस्टेशन. तो यहाँ पे किसका डिस्प्यूट आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, पॉलिटिकल, रिलेटिंग टू डेवलपमेंट. हम उसको समझेंगे. Okay. Not my period.